Hi, everybody. Welcome to this session. How are you all? I hope you guys are doing absolutely safe and sound, and so are everybody around you, right? And welcome, guys. बहुत टाइम से ये वाला जो चैप्टर है हेरिडिटी एंड वेरिएशन इसका पार्ट 2 एंड पार्ट 3 बाकी था. So I thought कि why not take some time and just record these two interesting sessions of the chapter heredity and variation for my cutest, sweetest little grade 9 के students. So very warm welcome all of you guys. We are continuing with the chapter heredity and variation ka part 2 and part 3, and after that we'll be starting a new chapter of grade 9 very soon. And I'll just quickly update you. So हम लोग grade 9 का नया chapter, that is introduction to biotechnology, we are starting it on the 12th of August. ठीक है. सो 12th of August को हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज कॉल्ड द introduction to biotechnology. And also guys, let me tell you that this is going to be the last chapter of your grade 9 biology. तो इसके साथ हम लोग हमारे grade 9 biology का चैप्टर खत्म कर देंगे, जो सिलेबस है वो खत्म कर देंगे, and that will be introduction to biotechnology, right? So this we are starting on the 12th of August, that is a Saturday. Now guys, talking about this chapter heredity and variation, today we are going to do part 2 and part 3 both. ठीक है. So from the 12th of August, that is Saturday, at 7 p.m. sorry, at 6 p.m. we are starting intro to biotechnology. ठीक है. चलिए. So in this particular chapter today we'll be continuing with genes, DNA fingerprinting, human genome project, RNA, the different types of RNA, Mendel principles of heredity, Mendel's monohybrid dihybrid cross, difference between mono and dihybrid cross, difference between pheno and genotype. There is going to be a quiz, and then we'll be summarizing the entire chapter. ठीक है. चलिए. So guys, get all ready to learn such amazing beautiful concepts. This is going to be super easy. I'll try to make your learning experience as makhan clear as possible. ठीक है. चलिए. So we begin with the topics, but before that I want all of you to quickly give this video a big fat thumbs up. Do not forget to share this video with all your friends of grade 9, and guys subscribe to the channel. ये जो हमारी अनअकैडमी महाराष्ट्र बोर्ड स्कॉलर्स की फैमिली है, ये फैमिली अभी तक हम लोग 5000 की भी नहीं बना पाए हैं. क्यों? जबकि हमारे पास 3000 से ज़्यादा फैमिली मेंबर्स ऑलरेडी हैं. इसके बावजूद हम लोग इस फैमिली को 5000 से ज़्यादा की क्यों नहीं बना पाए? आप लोगों की वजह से, बिकॉज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, आप लोग इस चैनल के नाम को फैला नहीं रहे हो. मैंने आप लोगों से एक बहुत ही सिंपल चीज मांगी थी, वो थी #each1get1. I just wanted all of you to get one more subscriber so that our family of Unacademy Maharashtra Board Scholars becomes double in a day. डबल करने की वो सीक्रेट स्कीम क्या है? वो स्कीम यही है कि आप लोगों को बस और एक व्यक्ति को सब्सक्राइब करवाना है. So make sure that you do that, guys, and also do not forget to connect with us on Telegram. The link for the Telegram will be given in the description of this video. Right? चलिए, now let us start. So we talk about genes. तो what are genes? Genes यानी कि denim genes नहीं. Genes यानी कि it is a segment of the DNA. तो जब हम एक सेल को देखते हैं, ठीक है, इमेजिन कीजिए आप माइक्रोस्कोप के थ्रू एक सेल को देख रहे हैं. अब आपको एक सेल के न्यूक्लियस में कुछ नहीं दिखाएगा, बस एक जाली दिखाई देगी, राइट? लेकिन अगर ये सेल डिवाइड करने वाला है तो आपको इस जाली के जगह इसमें दिखाई देंगे क्रोमोसोम्स. अब आप क्या करेंगे? अब हम उस एक क्रोमोसोम को उठाएंगे. कितने आपको दिखेंगे क्रोमोसोम्स? आपको दिखेंगे ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम्स. तो हम लोग इस क्रोमोसोम को निकालेंगे और हम लोग इस क्रोमोसोम, हमें दिखेगा कि ना एक स्प्रिंग के तरह कॉइल्ड है बहुत सारा. तो हम लोग इस स्प्रिंग को अनकॉइल 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 करते जाएंगे तो हमें क्रोमोसोम में मिलेगा डीएनए. अब इसी डीएनए का एक सेगमेंट बनाता है जीन, एंड दीज जीन्स कंटेन द कॉम्बिनेशन जिससे हमारे कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स डिसाइड होते हैं. कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स यानी कि अब अगर मैं आपको बोलूं कि आई कलर, अब आई कलर कौन कौन सा हो सकता है? आई कलर कैन बी ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, ग्रे, ओशन ब्लू. देर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट शेड्स ऑफ द आई कलर. तो आई कलर इज अ कैरेक्टर और ये सारे डिफरेंट शेड्स दे आर द ट्रेड्स. तो उसी तरह इस जीन पर कई सारे कैरेक्टर्स एंड ट्रेड्स डिसाइड होते हैं.
एंड ये जो हम हमारे पेरेंट्स से कैरी करते हैं वो हमारे अंदर दिख के आते हैं. सो दैट इज वाई जीन्स आर कंसिडर्ड टू बी द कैरियर्स ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स. ठीक है, दे आर कंसिडर्ड टू बी द कैरियर्स ऑफ द हेरिडिटरी कैरेक्टर्स. अगर आपको जीन को एक सिंपल लाइन में डिफाइन करना है तो आप क्या बोलोगे? जीन इज नथिंग बट द सेगमेंट ऑफ द डीएनए. जीन इज नथिंग बट द सेगमेंट ऑफ द डीएनए. ठीक है, चलिए कितने जीन्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में? तो ह्यूमन बींग्स में होते हैं अराउंड 25,000 जीन्स. तो हाउ मेनी जीन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स? वी हैव गॉट अराउंड 25,000 इन ह्यूमंस. ठीक है, ह्यूमन बींग्स में होते हैं अराउंड 25,000 जीन्स. क्लियर है यहां तक? चलिए अब हम देखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? अब जैसे हर एक इंसान का डीएनए यूनिक होता है उसी तरह से हर एक इंसान का फिंगरप्रिंट भी यूनिक होता है. द सीक्वेंस ऑफ द जीन्स इन द डीएनए ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड द जीनोम. तो एक इंसान के अंदर उसके जीन्स किस तरह से अलाइंड हैं उसको हम बोलेंगे उसका जीनोम. द सीक्वेंस ऑफ द जीन्स इन द डीएनए इज कॉल्ड द जीनोम. DNA fingerprinting is a technique that is used to find out the genome of certain areas of the DNA which are unique to an individual. तो जब हम लोग DNA fingerprinting में क्या करते हैं? DNA fingerprinting से हम लोग उस इंसान का जिनोम पता करते हैं, यानी कि उस इंसान में जो जीन्स का सीक्वेंस है वो किस तरह से अलाइंड है ये पता करते हैं. इसलिए हर एक इंसान का फिंगरप्रिंट अलग होगा क्योंकि हर एक इंसान का जिनोम भी अलग होगा. It is also used to identify the lineage and to identify criminals because it is unique to every person. Alec Jeffreys developed this technique. Who developed the technique of DNA fingerprinting? It was Alec Jeffreys. ठीक है, तो अब हर एक इंसान का डीएनए अलग होता है इसलिए हर एक इंसान का जीनोम अलग होता है, इसलिए हर एक इंसान का फिंगरप्रिंट अलग होता है और इसलिए इसी डीएनए की मदद से हम लोगों का जो क्रिमिनल केसेस हैं वो भी सॉल्व कर सकते हैं. क्यों? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने फॉर एग्जाम्पल दिस स्टाइलस इज अ मर्डर वेपन एंड द मर्डरर हैज टेकन इट इन हिज हैंड, यानी कि उस इंसान के फिंगरप्रिंट्स इस पर मिलेंगे हमें. अब ये फिंगरप्रिंट हम लोग जब लेंगे तब हमारे जो भी सस्पेक्ट्स हैं हम उन सस्पेक्ट के साथ इस फिंगरप्रिंट के जीनोम को मैच करेंगे. तो जिसका मैच हुआ दैट पर्सन इज द मर्डरर, राइट? सो इस हिसाब से वी कैन फाइंड आउट द criminals with the help of DNA fingerprinting. The Human Genome Project was started in 1990 and it was taken up by all the geneticists of the world. In June 2000 यानी कि आज से 23 साल पहले scientists of this project and Celera Genomics Corporation, which is a private industry in USA, collectively announced the discovery of complete DNA sequence of the human genome. Depending upon the findings of this project, scientists confirmed that the number of genes in the human genome is 20 to 30,000. ठीक है, तो ह्यूमंस में हमारे पास 20 से 30,000 टाइप के हमें जीनोम मिलते हैं. So this was under the Human Genome Project which started in 1990 and 10 साल बाद जून 2000 में साइंटिस्ट एंड सेलेरा जेनोमिक्स कॉर्पोरेशन ने मिलकर ये बताया कि सारे ह्यूमन बींग्स को अगर आप कंबाइन करोगे तो आपको 20 से 30,000 टाइप के जीनोम्स उसमें मिलेंगे. क्या मिलेंगे? 20 से 30,000 टाइप के अलग अलग जीनोम उसमें मिलेंगे. ठीक है, देन later scientists discovered the genomic sequence of many microorganisms also. Due to research in genomics, disease-causing genes can be identified. If disease-causing genes are identified, genetic disease can be diagnosed and properly treated. जब हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक सीक्वेंस देख लिया तो हम उसमें यह भी देख सकते हैं कि कौन से जीन्स में डिसऑर्डर है. उस जीन्स को एलिमिनेट करके या उस जीन की पावर को अल्टर करके हम लोग जेनेटिक डिजीजेस को रोक सकते हैं. हम लोग जेनेटिक डिजीजेस को रोकने के साथ साथ उनको बहुत जल्दी आइडेंटिफाई करके स्टेप्स भी ले सकते हैं. जैसे कि आपको पता है कि अभी अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उसका आई थिंक 3rd या 5th मंथ में ही डाउन सिंड्रोम टेस्ट कर लेते हैं. आई थिंक इट इज बिफोर द 3rd मंथ ओनली द डाउन सिंड्रोम इज टेस्टेड. डाउन सिंड्रोम अगेन इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, इट्स अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जहां पर 21st क्रोमोसोम में हमें ट्राइसोमी दिखती है. इट्स अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. तो ये डाउन सिंड्रोम 3 मंथ प्रेग्नेंट लेडी के फीटस का डिटेक्ट हो सकता है. And if the child has Down syndrome, then the doctors advise, ki if you want, you can go ahead with termination of the pregnancy so that, the child is not born with Down syndrome.
राइट। सो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की वजह से आज बहुत जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं। क्या आपको पता है आज हम लोग एक हेल्दी इंसान के जीन्स को स्टडी करके क्या उसमें लाइफ में आगे चल के कैंसर होने की संभावना है या नहीं, ये भी पता कर सकते हैं। So that is why the Human Genome Project and the study of genetics and genes has also helped us to identify, track and cure diseases far earlier than they begin, right? So it is a very very interesting and an advanced field of science. देन वी टॉक अबाउट आरएनए। तो जैसे डीएनए न्यूक्लियस में होता है वैसे आरएनए न्यूक्लियोलस में होता है। आरएनए इज एन इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड विच इज फॉर्म्ड ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स। जैसे डीएनए का फुल फॉर्म है डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, वैसे आरएनए इज ओनली राइबोन्यूक्लिक एसिड, उसमें डी ऑक्सी नहीं है। ठीक है। आरएनए इज मेड अप ऑफ राइबो शुगर फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स एंड 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन एंड यूरासिल। तो आप लोगों ने क्या देखा, हमने देखा कि डीएनए में क्या है, डीएनए में है ए टी एंड जी सी, करेक्ट। उसी तरह से इस टी के जगह पर हमारे पास आरएनए में है यूरासिल, राइट। इंस्टेड ऑफ थाइमिन देयर इज यूरासिल विच इज ऑल्सो pyrimidine इन नेचर। ठीक है। तो ये दोनों क्या है हमारे, ये दोनों है मेरे प्यूरिन्स। जिन्होंने जो भूल गए हैं सब कुछ वो लोग जाकर फर्स्ट सेशन दोबारा देखेंगे। एंड दीज आर माय pyrimidines। ठीक है। तो इस टी के जगह आपको आरएनए में मिलेगा यूरासिल। ठीक है। देर इज अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए मॉलिक्यूल। तो हमारे पास डीएनए कैसा है, डीएनए है हमारे पास डबल हेलिक्स, ठीक है, लेकिन आरएनए है हमारे पास अ सिंगल स्ट्रैंड। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए and आरएनए। डीएनए इज deoxyribonucleic acid, this is ribonucleic acid. DNA has pentose sugar, pentose sugar, phosphate molecules and nitrogenous bases. आरएनए भी वही है। डीएनए में है आपके पास थायमाइन, आरएनए में है आपके पास यूरेसिल। डीएनए इज डबल हेलिक्स, आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंड। ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। अब आरएनए में बहुत सारे टाइप्स हैं, हमारे पास है एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। ठीक है। तो ये देखिए, ये इस तरह से आरएनए होता है, इट इज जस्ट अ सिंगल स्ट्रैंड, यहाँ पर आपको डबल स्ट्रैंड्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। ये देखिए सी जी ए यू सी जी ए यू सी जी ए यू सी जी ए यू, ठीक है, यहाँ पर आपको बॉन्डिंग नहीं मिलेगी। तो आरआरएनए हमारे पास, ये आप फिगर को देख लीजिए, आई विल गिव यू 1 मिनट, जस्ट पे अटेंशन एंड लुक एट दिस फिगर नाइसली and then we'll go ahead with the types of RNA. डन। चलिए, अब आरएनए के अलग अलग टाइप्स होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। एमआरएनए जो है, जिसको मैसेंजर आरएनए भी बोलते हैं, इसमें हमारे पास राइबोसोम ऑर्गेनेल होता है। सॉरी, आरआरएनए को हम बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, लेकिन पहले आरआरएनए कर लेते हैं। तो आरआरएनए इज अ राइबोसोमल आरएनए। अब जहाँ पर भी राइबोसोम होंगे वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो आरआरएनए का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, जैसे कि यहाँ पर लिखा है। ठीक है। उसी तरह से जब हम एमआरएनए की बात करेंगे, सो इट इज द मैसेंजर आरएनए। ये बनता है डीएनए से ही आपके ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन के समय। It carries the information of protein synthesis from the genes, DNA change in the chain in the nucleus, in the cell nucleus to ribosome in the cytoplasm, which produce the proteins called mRNA. तो rRNA क्या करेगा, rRNA प्रोटीन बनाएगा, mRNA इस इंफॉर्मेशन को लेकर जाएगा डीएनए के न्यूक्लियस से राइबोसोम के साइटोप्लाज्म तक। तो राइबोसोम आपका आरएनए होता कहाँ है, तो अगर ये मेरा सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर होगा आपका आरएनए, ठीक है, और यहाँ पर होगा आपका डीएनए। ठीक है।
तो ये RRNA यहाँ पर उसे प्रोटीन बनाकर यहाँ तक लेके जाता है, फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म टू द राइबोसोम्स, ठीक है। एंड ये क्योंकि ये इंफॉर्मेशन लेके जाता है प्रोटीन बनाने की, इसलिए हम इसको बोलते हैं मैसेंजर RNA, एंड यू कैन सी इट हैज अ स्ट्रेट स्ट्रक्चर। अब tRNA क्या है? ट्रांसफर RNA। तो अकॉर्डिंग टू द मैसेज ऑफ द mRNA, इट कैरीज द अमाइनो एसिड्स अप टू द राइबोसोम्स एंड दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसफर RNA। तो ये क्या करेगा? mRNA क्या करेगा? इट विल कैरी ओनली द इंफॉर्मेशन from the genes, that is from DNA chain in the cell nucleus to the ribosome in the cytoplasm। तो ये information carry करेगा and it will, और tRNA क्या करेगा? It will according to the message of the mRNA ये अमाइनो एसिड को लेके जाएगा RRNA तक। तो mRNA information लेके जाएगा, tRNA आपका ये लेकर जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, वो आपकी अमाइनो एसिड को लेके जाएगा। तो tRNA जो है इट हैज अ क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर, ठीक है, इट लुक्स लाइक दिस, ठीक है। सो दैट इज अबाउट tRNA। देन ग्रेगर जोहान मेंडल जो थे वो एक बोटानिस्ट थे, वो एक मंक थे, और उन्होंने हेरिडिटी के प्रिंसिपल्स को स्टडी किया। उन्होंने ये सारे जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो उन्होंने किए गार्डन पी पर। गार्डन पी का साइंटिफिक नेम है पिसम सटाइवा। उन्होंने 8 साल इस गार्डन पी के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया, उसके हेरिडिटी कैरेक्टर्स को स्टडी किया, एंड मेंडल केम अप विथ 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल केम अप विथ 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। और ये जो उनके 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस थे वो थे लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 7 years 7 कैरेक्टर्स स्टडी किए इस पी प्लांट में। 7 साल तक इन्होंने 7 कैरेक्टर स्टडी किए, और इनके 7 साल की स्टडी के बाद ही गेव 3 लॉज जो थे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और मेंडल की ये सारी स्टडी की वजह से हम उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं, हम उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब वो कौन से 7 कैरेक्टर्स थे जो मेंडल ने स्टडी किए? तो मेंडल ने स्टडी किया फ्लावर कलर, फ्लावर पोजिशन, सीड कलर, सीड शेप, pod shape, then he studied plant height, and he studied pod color, pod shape. So flower color, flower position, seed color, seed shape, pod color, pod shape and plant height। तो ये 7 कैरेक्टर्स उन्होंने स्टडी किए, एंड बेस्ड ऑन दोज कैरेक्टर्स उन्होंने उनकी 7 साल की स्टडी के बाद ही गेव 3 लॉज, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखिए सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर पोजिशन एंड प्लांट हाइट। तो ये 4 कैरेक्टर्स उन्होंने स्टडी किए। तो स्टडी करने पर उन्हें ये पता चला कि जो कैरेक्टर हमेशा दिख कर आता है वो होता है डोमिनेंट, एंड उसको हम हमेशा कैपिटल लेटर से आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, उसको हम हमेशा कैपिटल लेटर से आइडेंटिफाई करेंगे। और जो कैरेक्टर नहीं दिख के आता है वो होता है रिसेसिव, जिसको हम हमेशा स्मॉल अल्फाबेट से डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। उसी डोमिनेंट का हम लोग स्मॉल अल्फाबेट यूज करेंगे, जैसे डोमिनेंट इज कैपिटल आर तो रिसेसिव विल बी स्मॉल आर। तो अगर हम सीड शेप की बात करें तो सीड शेप कैन बी राउंड और रिंकल्ड, सीड कलर कैन बी येलो और ग्रीन, फ्लावर कलर कैन बी पर्पल और white, flower pod shape can be inflated or constricted, pod color can be green or yellow, flower position can be axillary or terminal, and plant height can be tall or dwarf। So these are the 7 different characters and these are the 7 उनके dominant and recessive traits, ठीक है। तो ये dominant and recessive क्या है? ये dominant and recessive are the traits। तो एक कैरेक्टर के आपको मिलेंगे 2 ट्रेट्स। डोमिनेंट यानी कि जो दिख के आता है, रिसेसिव यानी कि जो नहीं दिख कर आता है।
चलिए, तो अब मेंडल ने क्या किया, मेंडल अपनी 7 साल की स्टडी कर रहा था। तो उन्होंने एक टाइम पर सिर्फ दो कैरेक्टर्स, उन्होंने एक टाइम पर सिर्फ एक ही कैरेक्टर स्टडी किया। एंड व्हेन ही स्टडीड ओनली वन कैरेक्टर एट अ टाइम, उसको हम बोलेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब है वन। सो व्हेन ही वाज स्टडीइंग ओनली वन कैरेक्टर, जैसे कि या तो वो सिर्फ हाइट स्टडी कर रहे थे, या वो सिर्फ फ्लावर पोजीशन स्टडी कर रहे थे, या सिर्फ कलर ऑफ द पॉड, या सिर्फ शेप ऑफ द पॉड, या सिर्फ कलर ऑफ द फ्लावर, या सिर्फ कलर ऑफ द सीड, या सिर्फ शेप ऑफ द सीड। तो व्हेन ही वाज डूइंग इट ओनली वन एट अ टाइम, when he was doing only one at a time, उसको हम बोलेंगे monohybrid cross। ठीक है, when he was doing only one at a time, it was called monohybrid cross। अब monohybrid cross करते समय मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने, मैं अब यहाँ पर अपने आप को हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को ये मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। सो दिस while doing the monohybrid cross, मेंडल ने हमेशा चूज किए प्योर पेरेंट्स। प्योर पेरेंट्स यानी कि ऐसे पेरेंट्स जिनमें दोनों ट्रेट्स सेम हो, उसको हम बोलेंगे होमोजाइगस। उसको हम बोलेंगे होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब क्या है, सेम ट्रेट्स। ठीक है, जैसे कि अगर मैं प्लांट हाइट की बात करूं, तो मेंडल ने जो पेरेंट्स लिए, पेरेंट में ही टुक द मेल एंड द फीमेल बोथ टू बी प्योर। सो मेल वॉज प्योर टॉल एंड फीमेल वॉज प्योर ड्वार्फ। ठीक है, ये उन्होंने जो लिए पेरेंट्स, दे वर प्योर। अब ये पेरेंट्स की क्रॉसिंग करने के बाद जो मेंडल को फर्स्ट जनरेशन मिली, उसको उन्होंने बोला फर्स्ट फीलियल जनरेशन। उसको उन्होंने बोला फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ठीक है, अब जब फर्स्ट फीलियल जनरेशन उन्होंने देखी, तो वो उनको मिली, दिखने में वो थी बिल्कुल टॉल। दिखने में वो थी बिल्कुल टॉल। जब उन्होंने इस फर्स्ट जनरेशन का सेल्फ क्रॉसिंग किया, तो उन्हें सेकेंड जनरेशन में दो टाइप के प्लांट्स मिले। ठीक है, एक था टॉल और एक था ड्वार्फ। ठीक है, एक था टॉल और एक था ड्वार्फ। अब ये तो दिखने में टॉल और दिखने में ड्वार्फ थे, लेकिन इनका जेनेटिक कॉम्पोजिशन क्या था? तो जो फर्स्ट जनरेशन थी उसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन था कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, यानी कि वो था हमारा हाइब्रिड टॉल। वो था हमारा हाइब्रिड टॉल। और जब हमने इसका सेल्फिंग किया, तो हमें जो प्लांट्स मिले, उनमें से एक था प्योर टॉल, दो थे हाइब्रिड टॉल, और एक था प्योर ड्वार्फ। तो जो हमें दिख के आता है, जैसे कि टॉल या ड्वार्फ, जो हमें दिख के आता है, उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। और जो हमें नहीं दिख कर आता है, यानी कि जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन होता है, जैसे कि ये, इसको हम बोलेंगे जीनोटाइप। इसको हम बोलेंगे जीनोटाइप। सो मेंडल ने जब पेरेंट्स लिए, तो पेरेंट्स वर homozygous tall and homozygous dwarf. The first filial generation was phenotypically tall but genotypically hybrid tall. And the second generation had one pure tall, two hybrid tall, and one pure dwarf. ठीक है, इस पर आप थोड़ा सा समय बिताइए, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ। स्पेंड अ लिटिल टाइम ऑन दिस स्लाइड सो दैट यू गेट यूज टू द कॉन्सेप्ट एंड देन विल बी मूविंग अहेड। ठीक है, टेक 1 minute of your time and just spend on this slide, spend on whatever I have written on the board, and then we will move ahead। चलिए, quick very quick।
डन। चलिए ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं एंड वी टॉक अबाउट। तो इससे हमें पता चला कि मेंडल ने पहले उन्हें क्या बोला कि जो पेरेंट से फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में जाता है उसको मेंडल ने बोला फैक्टर्स, और उन्हीं फैक्टर्स को आज हम बोलते हैं जीन्स। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया जो डोमिनेंट है उसको हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे एंड जो रिसेसिव है उसको हम स्मॉल या लोअर केस में लिखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये रहा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। टॉल पेरेंट ड्वार्फ पेरेंट दोनों प्योर हैं, दोनों प्योर हैं। फिर उनको जब हमने क्रॉस किया तो हमें मिला आपका फर्स्ट जनरेशन टू बी ऑल टॉल बट दे वर ऑल हाइब्रिड, दे वर ऑल टॉल बट दे वर ऑल हाइब्रिड। ठीक है, चलिए अब डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने क्या किया। डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने दो कैरेक्टर्स एक साथ लिए, जैसे कि ही टुक सीड कलर एंड सीड शेप। ठीक है, उन्होंने सीड कलर और सीड शेप ये दोनों को एक साथ उन्होंने क्रॉस किया। जब उन्होंने दोनों को एक साथ क्रॉस किया तो उन्हें मिला दैट येलो एंड राउंड इज डोमिनेंट, येलो एंड राउंड इज डोमिनेंट। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, तो ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना ये स्क्वायर, दिस स्क्वायर इज कॉल्ड एज द पनेट स्क्वायर, इट इज कॉल्ड एज द पनेट स्क्वायर। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज द पनेट स्क्वायर। और पनेट स्क्वायर की मदद से हम लोग पता कर सकते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। पनेट स्क्वायर से हम लोग पता कर सकते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। PUNNET, दिस स्क्वायर इज कॉल्ड एज द पनेट स्क्वायर। जैसे कि आप लोगों ने सपोज पेरेंटल जनरेशन लिया येलो, प्योर येलो एंड प्योर ग्रीन। ठीक है, प्योर येलो एंड प्योर ग्रीन। तो इसका मैं पनेट स्क्वायर कैसे बनाऊंगा, तो पहले तो मैं ये गैमीट्स को अलग अलग कर लूंगा, वाई वाई एंड वाई वाई। फिर मैं यहाँ पर बनाऊंगा स्क्वायर जिसमें मैं एक जगह पर लिख लूंगा मेरे सारे मेल गैमेट्स। तो वाई वाई इज द मेल गैमेट एंड वाई वाई इज द फीमेल गैमेट, और फिर मैं यहाँ पर इनको डिवाइड कर दूंगा। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, राइट, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, राइट, फिर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा एंड मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा एंड मैं यहाँ पर वो सारे कॉम्बिनेशंस लिखता जाऊंगा। तो मुझे सारे जो भी कॉम्बिनेशंस मिले वो कैसे मिले, वो मुझे मिले वाई वाई, यानी कि मेरा जो फर्स्ट जनरेशन होगा दे ऑल विल बी हाइब्रिड येलो। ठीक है, अब अगर मुझे इसका ही सेल्फिंग करवाना है, अब अगर मुझे इसका ही सेल्फिंग करवाना है तो अगेन मैं दो ले लूंगा। ठीक है, एक मेरा होगा वाई वाई और दूसरा मेरा होगा वाई वाई। ठीक है, पनेट स्क्वायर मेरा कैसे बनेगा, पनेट स्क्वायर बनेगा मेरा ऐसा, वाई 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 एंड वाई। तो अगेन वाई वाई, अगेन वाई वाई, अगेन वाई वाई एंड देन अगेन वाई वाई। तो यहाँ पर मुझे तीन टाइप की स्पीशीज मिलेगी। एक होगा, नहीं ये तो दोनों कैपिटल कैपिटल हो जाएंगे ना, एक होगा मेरा प्योर येलो, एक होगा हाइब्रिड येलो, दूसरा तीसरा होगा हाइब्रिड येलो और चौथा होगा प्योर ग्रीन। तो इस तरह से पनेट स्क्वायर बनता है, इस तरह से पनेट स्क्वायर बनता है, जहाँ पर आप स्क्वायर में एक साइड पर मेल गैमेट्स लिख दोगे, एक साइड पे फीमेल गैमेट्स लिख दोगे एंड देन यू विल मूव अहेड, एंड देन यू विल मूव अहेड। ठीक है, तो इस तरह से मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया, इस तरह से मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया। ठीक है, तो लेट अस सी मोनो एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस के बीच में डिफरेंस क्या है। सो मोनो हाइब्रिड में हम लोग बस एक कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं, इसका फिनोटाइप होता है F2 का 3:1 एंड जीन्स आर नॉट असॉर्टेड टू फॉर्म न्यू कॉम्बिनेशंस। और डाई हाइब्रिड में आपको मिलेंगे दो कैरेक्टर्स एट अ टाइम, F2 का फिनोटाइप इज 9:3:3:1। यहाँ पर आपको नया कॉम्बिनेशन भी मिलेगा। कैसे नया कॉम्बिनेशन मिलेगा, तो देखिए, तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये है येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड। ठीक है, येलो राउंड, तो येलो राउंड तो ऑलरेडी है, ये भी है येलो राउंड येलो राउंड, तो ये सारे 9 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपको मिल गए 9 येलो राउंड। ठीक है,
अब आपको 3 जो मिलेंगे वो मिलेंगे आपको येलो और रिंकल्ड, नया ही कॉम्बिनेशन है, ये बिल्कुल नया कॉम्बिनेशन है। तो ये देखिए 1 2 एंड 3, ये आपको बिल्कुल नया कॉम्बिनेशन मिल गया येलो रिंकल का। ठीक है, अब ग्रीन राउंड भी बिल्कुल नया कॉम्बिनेशन है, ग्रीन राउंड भी बिल्कुल नया कॉम्बिनेशन है, 1 2 3, तो ये भी आपको नया कॉम्बिनेशन मिल गया। और जो ग्रीन रिंकल्ड है ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो ग्रीन रिंकल्ड है ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये आपको मिल गया एक। तो आपको जो है ये टोटल 9+3 12+3 15+1 16, 16 में से आपको 6 तो बिल्कुल न्यू कॉम्बिनेशंस मिल गए। तो जब आप डाइहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो आपको नए कॉम्बिनेशन ज़रूर मिलकर देखने को मिलते हैं। जब आप डाइहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो आपको नए कॉम्बिनेशन बिल्कुल देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर तो हमने बस 2 कैरेक्टर स्टडी किए, ह्यूमन बींग्स में तो जीन्स ही 25,000 हैं, तो सोचिए कैरेक्टर्स तो कितने होंगे। और जब हम इन कैरेक्टर्स को मिक्सअप करते हैं मेल एंड फीमेल के, इसलिए आप लोग अपने पेरेंट्स से, आप में और आपके पेरेंट्स में इतने ज़्यादा वेरिएशंस हैं, आपके और आपके दादा दादी नाना नानी में इतने सारे वेरिएशंस हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में मिक्सिंग कर रहे हैं कि ज़रूर आपको नया नया कोई ना कोई कॉम्बिनेशन ज़रूर देखने को मिलेगा। जैसे कि क्या है कि अगर मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, तो मेरे फैमिली में ऑन बोथ साइड्स माय पेरेंट्स एंड लाइक बोथ साइड्स ऑफ माय पेरेंट्स, फादर एंड मदर एंड देयर फैमिलीज, नोबडी हैज़ ब्लड ग्रुप ऑफ ओ पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन जस्ट मी एंड माय सिबलिंग वी हैव ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। स्ट्रेंज राइट, न फादर का है न मदर का है, किसी का भी ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव नहीं है, लेकिन मी एंड माई सिबलिंग वी हैव द ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। तो अब ये कैसे हो सकता है? तो ऐसा हो सकता है कि ईदर आई माइट बी अ हाइब्रिड ओ पॉजिटिव और आई माइट बी अ प्योर ओ पॉजिटिव। ठीक है, कैसे? तो ये ऐसे हो सकता है कि माई mother might be O and B and my father also might be O and B, and जब mixing of gametes हुआ, so I am a either pure O positive or I can be a hybrid O positive, लेकिन उसके होने के चांसेस कम है। उसके होने के चांसेस कब होंगे? हाँ, ऐसा होगा तो इट विल बी अ हाइब्रिड ओ पॉजिटिव, और अगर ऐसा होगा तो ऑल्सो इट विल बी अ हाइब्रिड ओ पॉजिटिव, right? But then I have got at least one O positive. But then also, guys, there are more chances that I am a pure O positive, because अगर I would have been a hybrid O positive, तो one of my parent also has to be a O positive, लेकिन वो नहीं है, तो then it is maximum chances that I am a pure O positive. ठीक है, ये सब आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तब आप सीखेंगे। ठीक है, when you go to higher classes you learn more about it. राइट? चलिए, अब हम देखते हैं सम डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में होते हैं 46 क्रोमोसोम्स, 46 क्रोमोसोम्स, जिसमें से आपके 24 होते हैं ऑटोसोम्स एंड 2 होते हैं 46 क्रोमोसोम्स। 46 क्रोमोसोम्स में से 46 क्रोमोसोम्स में से ह्यूमन बींग्स में 44 होते हैं ऑटोसोम्स यानी कि बॉडी क्रोमोसोम्स, और 2 होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। अब ये 2 सेक्स क्रोमोसोम भी 2 टाइप में होते हैं। अगर मेल होगा तो उसमें होते हैं XY, और अगर फीमेल होगी तो उसमें होंगे XX। तो if you are a male, then your chromosomal setup is 44 plus XY, that is 45 46, total 46. And if you are a female, your chromosomal setup is 44 plus XX, which is again equal to 46. ठीक है, so this is about the human genetic or the human chromosomal makeup. This is the human chromosomal makeup. ठीक है, spend some time on this and please understand.
ठीक है, चलिए अब तो ये एक मिनट, हाँ, तो डोमिनेंट जैसे ह्यूमन बींग्स में तो कई सारे कैरेक्टर्स है, उसमें से 4 यहाँ पर है। तो रोलिंग टंग, यू नो, जैसे आई कैन नॉट रोल माई टंग, रोल टंग यानी कि बिल्कुल अगर आपकी ये टंग है तो टंग को आप ऐसे रोल कर सकते हो। तो कुछ लोग वो कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते। प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन आर्म्स इज डोमिनेंट, नॉन प्रेजेंस इज रिसेसिव। ब्लैक एंड कर्ली हेयर इज डोमिनेंट, ब्राउन एंड स्ट्रेट हेयर इज रिसेसिव। फ्री ईयरलोब इज डोमिनेंट, अटैच ईयरलोब इज रिसेसिव। तो आउट ऑफ दिस यू हैव टू चेक कि आप लोगों में क्या है और क्या नहीं है। जैसे आई कैन नॉट रोल माई टंग, आई हैव हेयर ऑन माई आर्म्स, आई हैव ब्लैक एंड कर्ली हेयर, लिटिल कर्ली, wavy actually, and free yellow, right? So you have to check what is dominant and recessive in you, है ना? चलिए, it's very interesting. Now phenotype is the outward appearance, genotype is the genetic composition. Phenotype you can see directly, genotype you need to determine. Individuals resembling each other may or may not have the same genotype, and individuals who have the same genotype usually have the same phenotypic expression. The phenotype in F2 is 3 is to 1, and the phenotype in genotype in F2 is 1 is to 2 is to 1 for a for a monohybrid cross. ठीक है, चलिए ये कर लीजिए, फिर इसके बाद हम करेंगे क्विज टाइम। ठीक है, चलिए। Now let us start with the quiz. I'll just move myself to the other side so that quiz questions are easily visible to all of you, है ना? चलिए, so which of the following characteristics of pea plant was not used by Mendel in his experiment? इनमें से कौन सा मेंडल ने नहीं यूज किया था in his experiment? So Mendel studied 7 years, 7 characters. Which of these is not a character studied by Mendel? Seed color, seed shape, pod length, flower color. चलिए जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक 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 फेवी क्विक, थिंक एन आंसर। वेरी इजी, इजी पीजी, जापानीजी। चलिए चलिए चलिए, जल्दी 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 जल्दी, क्विक 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 फेवी क्विक। 7 कैरेक्टर्स मेंडल स्टडीड, सो दो 7 कैरेक्टर्स में से यहाँ पर एक ऐसा है जो नहीं है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द 7. सो विच ऑफ देम इट इज? सो मेंडल स्टडीड सीड कलर, सीड शेप, pod color, pod shape, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजिशन एंड प्लांट हाइट। तो इनमें से वो कैरेक्टर जो उस 7 में नहीं था, वो था आपका पॉड लेंथ। सो पॉड लेंथ वॉज समथिंग विच मेंडल डिड नॉट स्टडी। सो ही स्टडीड सीड कलर, सीड शेप, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजिशन, राइट, पॉड कलर, पॉड शेप and plant height. He studied it in Pisum, Sativum or Sativum. Next one. What were the pairs of contrasting characters used in dihybrid cross? तो मेंडल ने जब डायहाइब्रिड क्रॉस स्टडी किया तो उसने कौन से 2 कैरेक्टर स्टडी किए? इट वॉज सीड शेप, सीड कलर, प्लांट हाइट या बोथ ए एंड बी? वेरी वेरी इजी, ये तो बहुत ही आसान है। चलिए, सुपर से भी ऊपर इजी क्वेश्चन है ये।
ठीक है, इसका आंसर होगा दे स्टडीड येलो एंड राउंड विथ ग्रीन एंड रिंकल्ड, राइट। तो उनको फर्स्ट जो ये थी पेरेंटल जनरेशन, फिर फर्स्ट जनरेशन मिली उनको हाइब्रिड येलो एंड राउंड, एंड जो सेकेंड जनरेशन मिली उनको वो थी 9:3:3:1, जिसमें से पहली थी आपकी येलो राउंड, दूसरी थी येलो रिंकल्ड, तीसरी थी आई थिंक ग्रीन एंड राउंड, एंड चौथी थी ग्रीन रिंकल्ड। तो ये आपको 4 टाइप की मिली। सो ही स्टडीड 2 कैरेक्टर्स, क्योंकि डाई हाइब्रिड, डाई का मतलब होता है 2, राइट। तो दैट्स व्हाई इट वाज बोथ ए एंड बी, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 50, 70, 10 और 20,000 जीन्स। इजी पीजी, चलिए वेरी वेरी इजी। ठीक है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा योर इज द आंसर इज द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हैज human genome consists of approximately 20 to 30,000 genes. So this is the correct answer. ठीक है, started in 1990, ended in June 2000, मतलब still going on, but yeah. Next one. The DNA fingerprinting was developed by Francis Crick, James Watson, Gregor Mendel or Alec Jeffreys. Very easy, time to remember what all we have learned. चलिए इसका आंसर है एलेक जेफरीज। सो एलेक जेफरीज डेवलप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। नेक्स्ट वन, आरएनए contains uracil, it is a dash, प्यूरिन, pyrimidine, न्यूक्लियोटाइड या ऑल ऑफ द अबव। तो हमें क्या पता है, हमारे डीएनए में है ए टी जी सी, ठीक है। तो ये टी के जगह आरएनए में है यूरासिल। तो ये प्यूरिन है या पिरिमिडिन है या न्यूक्लियोटाइड है या ऑल ऑफ द अबव? थिंक 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 थिंक।
ठीक है. So uracil is a pyrimidine. Uracil is a pyrimidine. ठीक है. Next one. RNA contains repeating units of deoxyribonucleotide, ribonucleotide, deoxyribonucleoside और ribonucleoside. Very easy. RNA में आपको repeating units किसके मिलेंगे? RNA में आपको repeated units किसके मिलेंगे? जल्दी से बताइए. चलिए. Quick, very quick. ये आपको मिलेंगे राइबोन्यूक्लियोटाइड के. ठीक है. चलिए. नाउ गाइस आई जस्ट हाइड माई सेल्फ सो दैट यू कैन सी द एंटायर समरी. लेट अस समराइज कि हमने हेरिडिटी वेरिएशन पार्ट 2 में क्या सीखा. तो हमने पार्ट 2 में ये देखा कि जीन इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है एंड इट ऑल्सो कैरीज द कैरेक्टर्स. कैरेक्टर्स में होते हैं 2 ट्रेट्स. ठीक है. अलील्स आर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक टेक्निक है जिससे हम लोग डीएनए सीक्वेंसिंग यानी कि जीनोम को डिटरमाइन कर सकते हैं. ठीक है. जीनोम इज द सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. इट इज मेड ऑफ डीएनए और आरएनए इन वायरस. वायरस में डीएनए नहीं आरएनए होता है. इट इंक्लूड्स जीन्स एंड अदर एलिमेंट्स दैट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ दोज जीन्स. ठीक है. उसके बाद हमने ये देखा कि द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1990 में स्टार्ट किया था. वर्ल्ड के सारे जेनेटिसिस एंड यू नो देयर वाज अ कंपनी विच वाज फ्रॉम यूएस एंड ईयर 2000 में हम लोग ये बता पाए कि द एंटायर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हैज एंटायर ह्यूमन जीनोम हैज ऑलमोस्ट 20 to 30,000 जीन्स. आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसमें हमें मिलता है प्यूरीन, पिरिमिडेज, नाइट्रोजनस बेस एंड राइबोज शुगर. ठीक है. यहाँ जैसे हमें डीएनए में मिलता है थाइमाइन वैसे ही आरएनए में हमें मिलता है यूरासिल. आरएनए 3 टाइप के होते हैं. राइबोसोमल आरएनए जो प्रोटीन बनाता है, मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए जो इस इंफॉर्मेशन को लेकर जाता है साइटोप्लाज्म तक, एंड ट्रांसफर आरएनए जो अमाइनो एसिड को राइबोसोम तक लेकर जाता है. ठीक है. There were 7 characters which were studied by Mendel for 7 years in Pisum sativum. The reason why he chose Pisum sativum because hybridization was easy, it was perennial and it was he could study multiple characters at a time. ठीक है. मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है when they are studying only one character at a time, जिसमें हमें F2 का phenotype मिलेगा 3:1 एंड जीनोटाइप मिलेगा 1:2:1. उसी तरह से जब हम डाइहाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो उसका हमें फिनोटाइप मिलेगा 9:3:3:1. ठीक है. और जो जीनोटाइप है F2 का वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. वो आपको अभी 9th स्टैंडर्ड में नहीं है, वो आप 12th स्टैंडर्ड में देखेंगे दैट व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ डाइहाइब्रिड F2. ठीक है. चलिए. So with this guys, we come to the end of your chapter heredity and variation. I hope you guys enjoyed the session. If you did, do not forget to give this video a big fat thumbs up. Do share this video with everybody whom you know and subscribe to the channel because it is absolutely free. Until we meet next, this is Pritesh, your host, your dose and a proud educator from an academy. Let's crack it together. Signing off for now. Need to see you soon. Until then, take care of yourself. Stay healthy, stay happy, stay blessed. God bless all of you. Lots of love. Bye-bye. Thank you.